So we will start with the new chapter of electromagnetic induction. In this chapter, we are going to combine the concepts of electricity and magnetism into a single phenomena and solve problems related to current and magnetism as a combined concept, right? Previously, we only discussed them individually. First, we discuss about magnets, then we discuss about electricity. Now we will discuss about combination of electricity and magnet, and that phenomena is known as electromagnetic induction. And in this chapter, the first concept we need to know about is of induced EMF. And if you remember the basic definition of EMF, what is the basic definition of EMF? Work done over charge. Yes, work done on a unit charge is known as EMF. And now we are going to discuss about the induced EMF, right? So in this concept, induced EMF, or the word induced is something different from produce, or induced means that there will be no physical connection of wires or any specific circuit, but there will be a value of EMF into the circuit, right? So यहाँ पे आपके पास सिंपल कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा वायर्स में, जिस तरह हम बैटरीज के साथ हम कनेक्शन कर रहे थे ना वायर में, तो यहाँ पर आपके पास कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है, विदाउट फिजिकल कनेक्शन, विदाउट फिजिकल इंटरेक्शन, देयर विल बी अ induced EMF, or you can say that there will be a value of EMF in the circuit, right? Okay, any confusion? No. Okay, now let's see that how is it possible to induce EMF in a coil or in a wire without any physical connection or without any combination, right? So let's suppose if there is a magnet, this is the north side of a magnet, and on the other side we take the south. What will be the direction of magnetic field? From north to south. From north to south. So this will be the direction of magnetic field from north to south, right? And let's suppose if there is a wire or a conductor is placed between the magnetic field like this. This is a conductor or a wire which is placed between magnetic field, right? So if we discuss about the effect of magnetic field on electric current or the effect of electric current on magnetic field, so both will affect each other, right? Magnetic field will also affect electrons and the electric field will also affect the magnetic flux, right? Or the magnetic field. Let's suppose if there is a wire or a conductor, and if you continuously move wire or a conductor in the magnetic field, so there will be a value of EMF in this conductor. There is no physical connection or direct connection with the circuit, बट जब भी आप यहाँ पे वायर को डिस्प्लेस करोगे अपनी पोजीशन से इस मैग्नेटिक फील्ड में, सो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी an induced EMF in this conductor or the wire, right? Yes. And let's suppose अगर आप इसमें इसकी देखना चाहो कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन होती है यहाँ पर,
So let's see that how induced EMF work. Okay, screen is visible now. Yes. Okay, so in this connection, you can see that there is a dry cell and there is a wire which is connected with a bulb, right? So this is a direct combination, right? There is no magnet, there is no magnetic field, right? This is the concept now of, so now you can see that there is a coil. ठीक है, ये एक अदर कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम डिटेल में फर्दर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट देखो कि एक सिंपल प्राइमरी कॉइल को हमने कनेक्ट किया है किससे, बैटरी के साथ, राइट। यहाँ पर एक सिंगल कॉइल में आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, राइट। और यहाँ पर आपके पास जो है वो स्विच कनेक्ट किया है और इसको हमने पावर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, राइट। और जब एक कॉइल में आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, राइट। जिस तरह से मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है तो करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ सेकंड कॉइल से फ्लो करेगी तो आपके पास ये बल्ब जो इसके साथ कनेक्ट है वो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पास लाइट ऑन हो जाएगा, राइट। Yes. तो सेम कॉन्सेप्ट आपके पास मैग्नेट में भी होता है कि जब आप मैग्नेट में उसको यूज करते हो तो मैग्नेट की में भी आपके पास मूव करने के साथ साथ, जैसे यहाँ पर अगर हम मैग्नेट की एग्जांपल लें तो अब आप यहाँ पर देखना कि मैग्नेट की मोशन से आपके पास क्या इफेक्ट, या तो आप कॉइल को मूव कर लो या मैग्नेट को मूव कर लो। ठीक है, अब इसमें मैग्नेट को मूव कर, अब आप देखो मूवमेंट की वजह से आपके पास यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है, राइट, या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फिर जब मूवमेंट होगी आपके पास तो वर्क डन होगा, और वर्क डन जो आपके पास चार्जेस पर होता है उसको आप ईएमएफ कहते हो। ठीक है, अब देखो या तो आप अभी फर्स्ट उन्होंने मैग्नेट को मूव करके दिखाया यहाँ पर, और सेकंड आप देखो अगर कॉइल को भी मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग तो वहां पर भी आपके पास जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने का यहाँ पर प्रूफ ये है कि आपके पास जो बल्ब है वो लाइट ऑन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, Yes. इंड्यूस ईएमएफ का आपके पास ये कॉन्सेप्ट होता है वहां पर। अब आप देखो पहले हमने एग्जाम्पल देखी थी तो वहां एग्जाम्पल में आपके पास जो है वो सेल के साथ कनेक्टेड थी वायर, राइट। और फिर जब हमने फर्दर वीडियो का पार्ट देखा तो उस पार्ट में आपके पास जो है वो कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं था, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, सिर्फ हम फील्ड की बेस पर जो है वो ईएमएफ को इंड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपने ईएमएफ के लिए पॉइंट्स मेंशन करना हो कि ईएमएफ को आप कैसे इंड्यूस कर सकते हो, तो ईएमएफ इंड्यूस करने के आपके पास फैक्टर्स इस तरह से मेंशन कर सकते हो। EMF will be induced in a conductor if
if there is relative motion or relative movement in conductor and the magnetic field. ओके, एनी कंफ्यूजन? No. ठीक है, अब आप इसको दोनों टर्म्स में से लिख सकते हो, जो भी आपको इजी हो। क्या हम मैग्नेट को मूव कर सकते हैं, वायर को स्टेशनरी रख सकते हैं, अदरवाइज आप वायर को मूव कर सकते हो, मैग्नेट्स को आप जो है वो स्टेशनरी रख सकते हो। आपने दोनों कंडीशंस देखी थी, राइट? तो दोनों तरह से ईएमएफ पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम दोनों कंडीशंस में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो मैग्नेट्स ड्रॉ किए थे वो डिफरेंट बार्स की साइड है, तो मैं यहाँ पे मैग्नेट को उतना इजीली मूव नहीं कर सकता, मुझे दोनों मैग्नेट्स मूव करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए वायर को मूव करना इजी है, राइट? और अगर मैग्नेट फिक्स कंबाइन होता सिंगल और मैं वायर को कॉइल बना लेता, तो फिर मैं मैग्नेट को मूव करके भी ईएमएफ इंड्यूस कर सकता हूँ, राइट? Yes. ठीक है, अब होता है कि जब हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, सो कंडक्टर विल कट आउट दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, so there will be an induced EMF in the wire, right? So in simple words, if you just summarize this concept of induced EMF, so you can just simply write moving an electrical conductor moving an electrical conductor in a magnetic field in magnetic to induce an So if you want to just write the definition, so you can just simply use this concept. And if you want to explain conceptually, so you can write this description for the concept, right? So both possibilities are there. Either you can just simply move conductor, or if we take a loop of a wire like this, so there is a loop of a wire, and if there is a magnet placed over this side, so we can also induce EMF by moving this magnet through this wire or this conductor, right? If right hand side, so there will be an induced EMF, and if we move backward this magnet in the backward direction, so there will be also an induced EMF, but direction will be different, right? Okay, any confusion? No. So if you just connect an ammeter with this wire or this coil like this, so when you move this magnet forward or backward, so you will get the deflection in an ammeter, right? That indicates you that there will be a value of EMF or electric current in the wire or in the coil, right? Yes. And this induced EMF happens because of change of magnetic field, right? So just we can simply write in a single line, induced EMF produced
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। वायर को कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अब भी चेंज हो रही है, राइट। मैग्नेट को मूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑटोमेटिक चेंज हो रही है, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के पास ईएमएफ इंड्यूस होगा इन शॉर्ट। ओके, चाहे आप दोनों कंडीशन में कुछ भी मूव कर लो, क्योंकि जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर जो डायरेक्शन हो वो इन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ टू इनवर्ट बना रहे हैं, ठीक है। जब मैं इस मैग्नेट को फॉरवर्ड लेकर जाऊंगा तो फील्ड आपके पास फॉरवर्ड तक फ्लो करेगी, ठीक है। और उस पे आपके पास जो है वो चार्जेस पे डिफरेंट इफेक्ट होगा। जब हम इसे बैकवर्ड लेकर जाएंगे तो फील्ड वीक हो जाएगी, क्योंकि बहुत कम फील्ड जो है वो सिर्फ वायर को क्रॉस कर रही होगी। सो इस फील्ड चेंज की वजह से जो है वो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, राइट। ओके, एनी कंफ्यूजन? No. ओके, ओके, इफ वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ current or EMF. So suppose if you want to identify the direction of current in the same coil, let's suppose if we take the example of a simple wire and a coil of a wire. Let's suppose if there is a conductor and you need to identify the direction of magnetic field around it, or let's suppose if there is a magnetic field, so what will be the direction of the electric current through it? So two different theories are there. So let's if we now want to discuss about the direction of electric current in a conductor or a wire. Direction magnetic field due to current। तो बहुत सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की रीजन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब कंटिन्यूस आपके पास चार्जेस फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो जब हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, कि हम किसी भी कंडक्टर के थ्रू जो है वो करंट पास करते हैं और आपके पास वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। कॉन्सेप्ट याद है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का? Yes. अभी हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या देखा, कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक यानी ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ये नेचुरल है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट पहले भी हमने देखा है। तो उसकी डायरेक्शन कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। अब लेट्स सपोज आपके पास एक सिंपल कंडक्टर है यहाँ पर, और करंट की जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर में वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। सो नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कहाँ से? हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पहले हमें मैग्नेट गिवन था, हमें मैग्नेटिक फील्ड पता थी, तो हम करंट की डायरेक्शन वहां पर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसी सेम सिचुएशन से। तो अगर आपके पास करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब इसका सिंपल सा रूल है कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए आप सिंपल यूज करते हो राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल का मतलब ये है आपके पास कि अगर आप वायर को या किसी भी कंडक्टर को, अगर आप अपने नॉर्मल पेन पेंसिल या किसी भी मार्कर को आप कंडक्टर कंसिडर करते हो और आप उसे होल्ड इस तरह से करते हो कि जो आपकी फिंगर का कर्ल होगा और थंब को आपने अपनी डायरेक्शन में रखना है, मतलब आपने फिंगर्स को यहाँ पे इस तरह से प्लेस करना है कि फिंगर्स यहाँ से कर्ल कर रही हूँ और थंब की डायरेक्शन आपके पास कर्ल डायरेक्शन में होगी, राइट, द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड start the curve, right? तो आपके पास जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल इंडिकेट यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और एंगल कर्ल होगा वो आपको किसकी डायरेक्शन इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप? अब अगर इस कंडक्टर को हम स्ट्रेट रखते हैं वर्टिकल, ठीक है, तो अगर आप अपने जर्नल के ऊपर किसी भी पेन को स्ट्रेट रखते हो और वो आपका कंडक्टर है और उसकी अपवर्ड डायरेक्शन में आप थंब को रखते हो और फिंगर्स उसके अराउंड कर्ल कर लेते हो, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सो वो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? So this is the simple rule to find out the direction of magnetic field or electric current when we are only talking about electric current and magnetic field, right? अभी कोई थर्ड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, हम सिर्फ इन दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, राइट? और लेट सपोज अगर वायर की जगह पर हमारे पास कॉइल हो, अगर वायर की जगह पर कॉइल को यूज करें, मतलब हमारे पास कॉइल राउंड हो जाए और राउंड करने के बाद जो है हम उसे सॉल्व करना चाहें, सो लेट सपोज हम सेम, ठीक है, अब इसमें से जब करंट पास होगा, लेट सपोज करंट हम यहाँ से पास कर इसमें पॉजिटिव से, सो करंट की डायरेक्शन ये होगी और फाइनली ये होगी, ठीक है। अब करंट जो है वो सर्कुलर मूव कर रहा है, पहले करंट स्ट्रेट मूव कर रहा था, अब करंट सर्कुलर मूव कर रहा है, तो अब आप कैसे डायरेक्शन इंडिकेट करोगे? अब जो आपका फिंगर का कर्ल होगा, ठीक है, वो होल्ड करेगा कंप्लीट कॉइल को, ठीक है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, क्योंकि हमें नॉर्थ पोल की डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो हमें साउथ की ऑटोमेटिक डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी, राइट? और इसकी भी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो, डिफिकल्ट है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना। नो। ओके, अ लिटिल। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन का थोड़ा सा होता है इसमें, क्योंकि इसमें हम फिजिकल वायर होता है तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा अब ये देखो आप, हम पहले बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट की, ठीक है, आपने जो है वो होल्ड किया कंडक्टर को और एक डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन और बाकी जो फिंगर का जो कर्ल है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, राइट? तो ये तो कॉन्सेप्ट सिंपल है।
और जो कॉइल को कर्व किया हमने लाइक दिस, अब आप ये देखो कि इसमें जो करंट का फ्लो था वो अपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब अपर डायरेक्शन का मतलब ये है कि करंट यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब बैक साइड से होकर, और यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है, राइट। बैक साइड से अपवर्ड और फ्रंट से डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड डाउनवर्ड। तो कंटिन्यूसली इसकी यही डायरेक्शन है। यहाँ से वो अपवर्ड जा रहा है बैक साइड पे, और फॉरवर्ड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, राइट, यहाँ इस तरह से। क्लियर है? तो जिस डायरेक्शन Yes. में भी आपके पास करंट मूव कर रहा है वो बैकवर्ड से फॉरवर्ड आ रहा है, तो आपने फिंगर के कर्ल को भी उस तरह से रखना है, ठीक है। अब आप देखो जहाँ पे फिंगर की डायरेक्शन है वहीं पर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन शो हो रही है, राइट। और अब आप देखो जो थंब जिस डायरेक्शन में आपके पास होगा वो थंब आपको रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को, ठीक है। और नॉर्थ पोल जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो साउथ ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। Yes. So that will be the direction of north and south pole in the round wire or the coil of a wire. तो फिंगर कर्ल आपको अब जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है वो करंट की डायरेक्शन को एक्सप्लेन कर रही है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी so the direction of thumb will indicate you the direction of north pole, right? Any confusion? No. Okay. So this is the basic concept of induced EMF and the induction of magnetic field due to electric current, and the method that how we can find the direction of electric current and magnetic field in a simple wire or a coil of a wire, right? Yes. So if you want to ask any question related to this, you can ask. Otherwise, we will continue with the next topic. No, so it's clear. Okay. So in next meeting, we will start with new topic, that is of there will be a force including there, right? If there is a current, there is a magnetic field. So we will also discuss that there will be a force or a quantity of a force there, right? So in next meeting अभी हम उसमें second concept discuss करते हैं, right?